إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، تزکیہ نفس کا یہ درس جو سورہ یوسف کی تفسیر پر مشتمل ہے اور درس یہاں تک پہنچا کہ آیت نمبر 34 اس کی تفسیر آپ کے سامنے پچھلے درس میں پیش کی جا رہی تھی. ہم اس سلسلے کو آج یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آیت نمبر 34 کا آخری حصہ باقی رہ گیا تھا، تو آج آپ کو اس آیت کی تفسیر پہلے یاد دلائیں گے، پھر آیت نمبر 35 36 جو آگے کی آیتیں ہیں انشاءاللہ ان آیتوں کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 34 میں کہ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، یعنی یوسف کے رب نے یوسف کی دعا قبول کر لی. تو اس کے پہلے والی آیت میں یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جنہوں نے دعا کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے میرے رب جیل اور قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں. یعنی اس گناہ سے، جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، یہ زناکاری اور بدکاری، اس گناہ میں مبتلا ہونے سے تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے. اور یہ بھی کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر ان کی سازشوں اور ان کے مکر و فریب کو مجھ سے موڑا نہیں گیا، تو نے اگر نہیں موڑا ان کے جو ہے مکر و فریب کے اس تیر کا رخ میری طرف سے، تو نے اگر نہیں موڑا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں. میری طرف سے میرا نفس جو ہے، نفس امارہ، یہ ان کی طرف جھک سکتا ہے، مائل ہو سکتا ہے، اور میں بھی نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. میں بھی جو ہے غلط کام کرنے والوں میں، جو لوگ کیریکٹر جو ہے لوز کیریکٹر کے حامل لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کا میں بھی ہو جاؤں گا. لوز کیریکٹر والے لوگوں میں میرا بھی شمار ہو جائے گا. یہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی. تو یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو ان کے رب نے قبول کر لیا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور یوسف علیہ السلام سے ان عورتوں کے مکر کو، فریب کو، ان کی چالوں کو، ان کی سازشوں کو دور کر دیا، قبول کر لیا. اور آخری ٹکڑا کیا ہے جس کے بارے میں پچھلے درس میں کہا تھا کہ یہاں ان دو ناموں کی مناسبت کیا ہے، آج کے درس میں یہیں سے بات شروع کرنی ہے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً یعنی اللہ تعالی وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تاکید ہے اس اسلوب میں، بہت زیادہ تاکید ہے.
इन्नहु हुवस्समीउल अलीम, यकीनन वो सुनने वाला है, जानने वाला है। तो अल्लाह ताला के नामों में से यहाँ दो नाम अस्समी अल अलीम जो है जिक्र किया गया। अस्समी का मतलब होता है सुनने वाला, अल अलीम का मतलब होता है जानने वाला। तो इन दो नामों में अल्लाह ताला के सुनने और जानने की, अल्लाह ताला के सुनने और जानने की सिफात है ये इन दो नामों में। तो इन दोनों नामों का खास तरीके से इंतखाब किया गया है यहाँ पर और उसका जिक्र किया गया है। ये मुनासबत क्या है? बंदा दुआ करता है तो जब भी कोई पुकारे उसकी पुकार को सुना जाए, तो इससे ताल्लुक किसका हो गया? अस्समी का हो गया। पुकारने वाले की पुकार सुनी जाए, आवाज लगाने वाले की आवाज सुनी जाए, ये किसका काम होता है? अस्समी का, जो सुनने वाला है वही तो सुनेगा। अल्लाह ताला सुनने वाला है, समी है, सुनने वाला है, सुनने की सिफत है उसकी। तो अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को सुना और वो अस्समी है, सुनने वाला है। यहाँ सुनने की सिफत जिक्र की गई है। अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला है और उसके नामों में से एक नाम अस्समी है जिसके अंदर सुनने की सिफत पाई जाती है। और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अस्समी है और सुनने की सिफत उसके अंदर पाई जाती है और हम उसे साबित मानते हैं। इंसान भी सुनता है, अल्लाह की मखलूक़ात भी सुनती हैं, अल्लाह ताला की दीगर मखलूक़ात भी सुनती हैं, इंसान भी सुनता है, लेकिन सुनने और सुनने में फ़र्क होता है। बाज़ गुमराह फ़िरक़ों ने अल्लाह तबारक व तआला की सिफत का इनकार कर दिया, सिफत साबित नहीं किया, क्योंकि उनके जहनों में ये बात आई कि अगर हमने ये मान लिया कि अल्लाह ताला सुनने वाला है, सुनता है, सुनने की सिफत उसके अंदर पाई जाती है, तो इससे ये लाजिम आएगा कि फिर उसके कान भी है, उससे ये लाजिम भी आएगा कि जो है जैसे हम इंसान सुनते हैं, जैसे अल्लाह ताला की दीगर मखलूक़ात सुनती हैं, अल्लाह ताला भी सुनता है। ये सारी चीजें उन्होंने अपने जहन में ये खिचड़ी पकाई, जिसका नतीजा ये निकला कि फिर उन्होंने इस सिफत का ही इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, क्योंकि ये सिफत अगर हम अल्लाह ताला के लिए साबित करते हैं तो इससे क्या लाजिम आता है कि अल्लाह ताला इंसानों के, अल्लाह ताला मखलूक़ात के मुशाबे है, जबकि अल्लाह ताला के मुशाबे कोई चीज नहीं। इन लैसा कमिस्लिही शै, इस टुकड़े को उन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद वाले टुकड़े को भूल गए कि अल्लाह ताला के मिस्ल कोई चीज नहीं है। ये सही है, लेकिन वो सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है, देखने की सुनने की सिफत उसके अंदर पाई जाती है, लेकिन उसके मिस्ल कोई चीज नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहेंगे यस्माउ ला कसमइना, वो सुनता है लेकिन हमारे सुनने की तरह नहीं सुनता है, जैसे हम सुनते हैं वैसे नहीं सुनता है वो। उसका सुनना हमारे सुनने से अलग है। सुनने की सिफत मखलूक़ात में भी पाई जाती है, सुनने की ये सिफत अल्लाह ताला के अंदर भी पाई जाती है। सिफत के लिहाज से, सिफत के नाम के लिहाज से दोनों एक हैं, लेकिन सिफत की जो कैफियत है, उसकी जो सलाहियत है, अल्लाह ताला का सुनना ये हम मखलूक़ात के सुनने से अलग है। उसकी सुनने की सलाहियत, ये हम इसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकते इस दुनिया में, क्योंकि उसके मुशाबे कोई चीज नहीं है। अगर उसके मुशाबे कोई चीज होती, उसके मानिंद कोई चीज होती, तो हम मिसाल से समझा सकते थे कि भाई वो सुनता है, जैसे जो है आप जानते हैं कि फला चीज या फला मखलूक या फला जो है इंसान, जो भी अगर जो है इंसानों में मखलूक़ात में अगर कहीं कोई मुशाबहत होती तो वो मिसाल पेश करके हम समझा सकते थे, लेकिन उसके मिस्ल तो कोई चीज है ही नहीं। इसलिए उसकी सिफात पर जैसे जिक्र आया है
वैसे ही ईमान रखना होता है, उसे साबित करना होता है, और साथ में ये भी कहना होता है कि उसकी सिफत मखलूक़ात की सिफत से अलग है, मुख्तलिफ है। अब मैं आपको उसी के ताल्लुक से चंद बातें पेश करना चाह रहा हूँ। अब ये मसला आता है मेरे भाइयों, कभी कभी लोग सवाल भी कर जाते हैं, कहते हैं लोग कि जो है अल्लाह तबारक व ताला सुनता है, सारे पुकारने वालों की पुकार सुनता है, सारे इंसानों की, सारी मखलूक़ात की पुकार सुनता है, और एक ही वक्त में न जाने कितने लोग उसे पुकारते हैं पूरी दुनिया, एक ही वक्त में न जाने कितने लोग। मैं सिर्फ इंसानों की बात करूं तब भी जो है कितने इंसान दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, एरियो में जो है, एक जगह से भी नहीं, मुख्तलिफ एरिया से एक ही जगह लोग पुकारते हैं, और वो सबकी पुकार सुनता है, और सबकी पुकार सुन करके उसका जवाब भी देता है, उसे कबूल करता है, और जो उनकी तलब होती है, मांग होती है, अपने इल्म के लिहाज से जो उनके लिए मुनासिब है, वो उनको अता भी करता है। आज हम सिर्फ ये एक दर्स, आपके सामने जो दर्स जो है पेश कर रहे हैं, इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं कि अगर आप सब लोग अभी म्यूट हैं, अनम्यूट हो जाएं, तो फिर कौन क्या बोल रहा है कुछ सुनाई नहीं देगा। अगर सब अनम्यूट हो करके सब आवाजें करना शुरू कर दें तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ये होता है हम लोगों का सुनना, हमारे सुनने की सलाहियत, कि एक इंसान, उसकी सुनने की सलाहियत मेरे भाइयों बहुत उसकी लिमिट है, लिमिटेशन है उसकी, हद है उसकी। और अगर कहीं एक ही मर्तबा शोर होना शुरू हो जाए, आवाजें होनी शुरू हो जाए, तो फिर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। ये हम इंसानों के सुनने की सलाहियत है। दूसरी बात क्या है कि अगर थोड़े फासले से अगर कोई आवाज आ रही है तो फिर हमारे कान वो सुनने की सलाहियत नहीं रखते। ये हमारा मामला। ऐसे ही दूसरी मखलूक़ात का भी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अल्लाह ताला की बाज़ मखलूक़ात की देखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत हम इंसानों से ज़्यादा है। ये भी ताज्जुब आप करेंगे, लेकिन हकीकत है ये। इंसान जो कि सबसे बेहतर जो है साख्त में अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है, और सब बेहतर मखलूक है ये, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की बात छोटी मखलूक़ात, उनकी सुनने और देखने की सलाहियत हम इंसानों से ज़्यादा है। एक कबूतर जिसे आप उड़ाते हैं, आसमान की सैर करके बहुत ऊपर चला जाए तब भी वो ज़मीन में देखता है, वहाँ से उसके देखने की सलाहियत इतनी ज़्यादा है। हम इंसानों की आँख एक हद तक देख सकती है, और इसमें भी इतनी कंडीशन है देखने में कि बीच में पर्दा नहीं हायल होना चाहिए। और हमारी देखने की सलाहियत, ये आँख अगर थोड़ा सा भी, आँख अगर हमारी बीमार हो जाए तो हमारी देखने की ये सलाहियत कमज़ोर हो जाती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आँख की जगह 4 आँख लगाना पड़ता है, चश्मे से देखना पड़ता है, कि देखने की सलाहियत हमारी मुतासिर हो जाती है, सुनने की सलाहियत हमारी मुतासिर हो जाती है। जैसे जैसे कभी अगर चोट वगैरह लग जाए और कान के पर्दे का कुछ मसला हो जाए, सुनने की सलाहियत ही खत्म हो जाए। ये हम इंसानों की जो है कमजोरी, और हम इंसानों का ये मामला है मेरे। तो अल्लाह ताला का सुनना, उसका देखना हम इंसानों की तरह से नहीं है, सुनने और देखने की तरह से नहीं है, या मखलूक़ात, दिगर मखलूक़ात के सुनने और देखने की तरह से नहीं है। वो सुनता है बहुत ही, किसी के कान में भी ले जाकर के कोई बात कहोगे ना तो वो भी सुनता है वो, और एक ही वक्त में सारी मखलूक़ात की पुकार सुनता है। इतना सारा शोर होने के बावजूद भी हर एक को सुनता है,
ہم انسانوں کی طرح سے اس کا سننا نہیں ہے یہ۔ تو یہ کبھی کبھی لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کا خیال آتا ہے، اس طرح کے ڈاؤٹس وغیرہ آ جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرح کا ڈاؤٹ کلیئر رہنا چاہیے، اور کوئی بھی اس طرح کی بات ذہنوں پہ نہیں آنی چاہیے کسی بھی انسان کے، ورنہ یہ جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں نا، یہ کبھی کبھی انسان کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ کبھی سوچتے ہیں لوگ کہ اتنے سارے لوگ ایک ہی مرتبہ دعا کرتے ہیں تو کیسے سب کی سن لیتا ہے، جبکہ ایک کلاس روم میں استاد اگر سارے بچے ایک ہی مرتبہ کچھ کہنے لگے تو 1 بائی 1 کی گہار لگاتا ہے، کہتا ہے نہیں 1 بائی 1 ایک ایک کر کے بولو، سب بولو گے مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ تو یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، السمیع ہے، سننے والا، جس کی سننے کی صلاحیت کتنی زیادہ ہے، کتنی عظیم ہے، اس کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ہی وقت میں ہر پکار کو، چاہے کوئی آہستہ پکارے، چاہے کوئی آواز سے پکارے، جیسے بھی پکارے اپنے رب کو، دل سے پکارتا ہے، زبان سے کوئی آواز بھی نہیں نکلی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پکار کو سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ یہ ہے السمیع۔ تو السمیع کی مناسبت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کا سننا، کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کا بندہ جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اسے یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ اس کی جو بھی دعا ہے وہ اس کا رب سنتا ہے۔ کبھی یہ دماغ میں نہ آئے میرے بھائیوں، آپ کے دماغ میں کبھی بھی یہ خیال نہ آئے کہ میں نے دعا کیا، پتہ نہیں میرے رب نے سنا کہ نہیں سنا، وہ تو میری سنتا نہیں ہے، میری نہیں سن رہا ہے۔ یہ کچھ سینٹینس ہیں جو ہمارے بعض بھائیوں اور بہنوں کی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کفریہ کلمات ہیں، اس کو نوٹ کر لیں، یہ کفریہ کلمات ہیں، کفر کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اور یہ ہمارے یہاں جو فلموں کا کلچر ہے، میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں اپنے دروس میں کہ ہم لوگ آج، ہمارے مسلمان بھائی اور بہن، ہم اپنے دین کو بھی فلموں سے سیکھتے ہیں۔ فلموں میں جیسا دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین میں بھی ویسا ہی، وہ سب کفریہ کلمات ہوتے ہیں جو وہاں دکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، میں نے اتنا پکارا، اتنا بلایا، اتنا بلایا، میری کبھی نہیں سنا، اس مرتبہ تو میری پکار سن لیا ہے میرے رب۔ کیسے ایسی ایسی باتیں جو کفریہ کلمات، جو بھی انسان، صرف انسان ہی نہیں، دنیا کی ساری مخلوقات جب اپنے رب کو پکارتے ہیں تو رب ان کا سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، اور کسی کو بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی بات اس نے نہ سنی ہو، اس کی پکار اس نے نہ سنی ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ السمیع ہے۔ لیکن دوسری صفت کیا ہے اس کی؟ دوسرا اسم، دوسرا نام یہاں کیا ذکر کیا گیا؟ العلیم۔ یہاں دونوں کا جوڑ ہے آپس میں، ورنہ عام طریقے سے آتا ہے السمیع البصیر، سننے والا، دیکھنے والا، لیکن یہاں العلیم آیا ہوا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ یہاں السمیع کے ساتھ العلیم آیا ہوا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں جاننے والا، علم کی صفت۔ وہ سننے والا، اس کے اندر سننے کی صفت ہے، جاننے کی صفت ہے، وہ العلیم ہے، السمیع ہے۔ وہ سنتا سب کی ہے میرے بھائی، لیکن ساتھ میں وہ جانتا بھی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، اور اس کی علم کی یہ صفت کس بندے کی کون سی دعا سننے کے بعد، قبول کرنے کے بعد اس کو وہی چیز عطا کرنا ہے، یہ وہ جانتا ہے۔ ہم انسان بھی میرے بھائیوں جب اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آگے جو چیز ہے جس کو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے خیر ہے یا خیر نہیں ہے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔
क्योंकि इसका ताल्लुक फ्यूचर से है और फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं जानते। फ्यूचर के बारे में वही जानता है, वो अल अलीम है, वही जानता है। तो वो सुनता सबकी है, लेकिन किस बंदे को क्या देना है और उसके लिए खैर क्या है उसका इल्म है उसे, तो उसी लिहाज से वो उसको अता करता है, उसी लिहाज से उसको देता है। कभी बंदा अपने रब से दुआएं करता है, लेकिन जो दुआ कर रहा है, वो जो तलब कर रहा है, मांग रहा है, वो उस बंदे के लिए खैर नहीं है फ्यूचर में। बंदे को तो पता नहीं है, वो तो मांग रहा है अपने रब से। अगर वो अलीम ना हो तो फिर जो मांगा फौरन दे दिया, नहीं, वो क्या है, साथ में अल अलीम भी है। क्या बेहतर है, वो रब है हमारा, हमारे लिए बेहतर क्या है वो जानता है, तो हमें वो बेहतर चीज अता करता है। हम जो मांगे वही दे, ये कोई जरूरी नहीं है, इसे नोट कीजिए। कभी भी जब अपने रब से मांगते हैं और जो चीज हमने अपने रब से मांगी वो चीज हमको नहीं मिली, तो ये मत समझिए कि वो रब तो हमारी सुनता ही नहीं है और हमने इतनी दुआएं की, वो हमारी दुआएं कबूल ही नहीं करता है। कभी भी ये मत सोचिए, ये सोचिए कि हमने जो मांगा था उसको इल्म था कि वो हमारे लिए खैर और भलाई नहीं है, तो हमको इसलिए उसने वो नहीं दिया, और जिसमें हमारे लिए खैर और भलाई है वही उसने हमको अता किया। ये है अस्समी अल अलीम। इन दो नामों का यहाँ पर जोड़ ये है मेरे भाई, ये मुनासिबत ये है, यही दो नाम यहाँ सबसे मुनासिब थे। ये भी नोट कर लीजिएगा। कभी भी इन्नहु हुवा समीउल अलीम कि अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल कर ली, कैद खाने की, जेल खाने जाने वाले कि जेल खाने में जाकर के रहना ये ज्यादा महबूब होगा मेरे लिए, इनके इनकी साजिशों से बचने के लिए, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए ये जो दुआ की थी, अल्लाह ताला ने ये दुआ सुनी और वो अल अलीम है, उसे इल्म है कि यही दुआ जो चाहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनकी इज्जत इफ़्फ़त की हिफाजत के लिए यही सबसे बेहतर शक्ल भी है कि इन इंसानी जो है आबादी, जो कि इंसानी आबादी में इस तरह के लोग जो है, इस तरह की औरतें मौजूद हैं जो इनके साथ बदकारी का इरादा कर रही है और जिनके हाथ में हुकूमत है, दौलत के नशे में है, हुकूमत के नशे में है, ताकत के नशे में है, और उसकी वजह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे, जबरदस्ती करने की, मजबूर करने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे बेहतर और महफूज जगह, सेफ जगह इनके लिए कौन सी? अब जेल खाना है, वो कैद खाना है, जेल, ये उनके लिए सेफ जगह है। अल्लाह ताला को ये पता है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया, जैसे वो चाह रहे वही दुआ उनकी कबूल कर ली, क्योंकि इसी में उनके लिए खैर था, क्योंकि वो समी है, अल अलीम है, अस्समी है, अल अलीम है, सुनने वाला है, जानने वाला है। अब उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में पहुंचे कैसे हैं उसका जिक्र आयत नंबर 35 में। सुम्मा बदा लहुम मिन बअदि मा रअउल आयाति लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन। फिर उनके लिए जाहिर हुआ, सारी निशानियां देख लेने के बाद, तमाम निशानियां देख लेने के बाद उनके लिए ये बात जाहिर हुई कि इन्हें जरूर कैद खाने में डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए एक मुद्दत तक। सुम्मा बदा लहुम, बदा लहुम उनके लिए जाहिर हुआ, लफ्जी माना इसका ये होता है उर्दू में। किनके लिए? ये जो अजीज मिस्र था और मिस्र के जो भी बादशाह
कह लीजिए, और बादशाह के साथ साथ जो वजीर वगैरह थे, यानी जो अथॉरिटी थी, जो हुकूमत चलाती थी वहाँ पर, हुकूमत चलाने की जो बॉडी थी, उनकी तरफ से ये चीज़ हुई। उनको ये महसूस हुआ कि इन्हें कैद में डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, हत्ता ही एक मुद्दत तक के लिए, एक वक्त तक के लिए इन्हें कैद में डाल दिया। सिजन कहते हैं, कैद खाना, जेल जिसे हम कहते हैं, उसको अरबी में सिजन कहा जाता है। तो ये उनको ये मसलहत उन्हें लगी कि इनको डाल दिया जाए कैद खाने में। हालांकि इन्होंने सारी निशानियां देख ली थी, सारे एविडेंस देख लिए थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई कसूर नहीं है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई गलती नहीं की है, ये मासूम हैं, इन्हें फंसाया जा रहा था और इनके साथ बदकारी का इरादा किया जा रहा था, इन्हें बहलाया फुसलाया जा रहा था। ये तो बिल्कुल पाक दामन थे और इन्होंने कभी अपनी तरफ से, इनकी तरफ से कोई झुकाव या मैदान नहीं रहा है। ये सब जानने के बावजूद भी वहाँ की जो बॉडी थी, जो गवर्नमेंट बॉडी थी, जो हुकूमत चलाने वाली बॉडी थी, उसने यही फैसला किया कि इनको जेल में डाल दिया जाए। तो कभी इंसान को बगैर किसी जुर्म के भी जेल में डाला जाता है। हर वो शख्स जिसे जेल में डाला गया हो, ये न सोचिएगा कि जिसको जेल में डाला गया है तो लाजमी तौर पर वो शख्स गुनहगार भी है, मुजरिम भी है, क्रिमिनल भी है। ये कोई जरूरी नहीं है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। मुख्तलिफ मसलहतों के लिए भी लोग मुख्तलिफ लोगों को जेलों में डाल देते हैं। ये हुकूमत के कारिंदे और जो हुकूमत चलाने वाली बॉडीज होती हैं, इनकी तरफ से ये चीजें होती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन थे, उनकी पाक दामनी बिल्कुल जाहिर भी हो चुकी थी, एविडेंस भी उनके सामने आ चुका था, सारी चीजें, सारे सबूत थे, सारे प्रूफ थे, लेकिन फिर भी क्यों फैसला किया, क्यों फैसला किया, आप समझ सकते हैं। क्योंकि इनको भी एहसास हो गया था, अजीज मिस्र को भी एहसास हो गया था कि अगर यूसुफ यहाँ रहेंगे तो मेरी बीवी जिसने ये हरकत की थी दोबारा भी ये हरकत करेगी। और वहाँ जो वो जो रॉयल फैमिलीज की जो जो है औरतें थी, जो खवातीन थी, जिनको दावत दी थी अजीज मिस्र की बीवी ने और जिन्होंने अपनी उंगलियां काट ली थी, तो जाहिर सी बात है कि उनके शौहरों को भी इस बात का एहसास था कि यूसुफ अगर यहाँ रहेंगे तो इनकी औरतें साजिश करके और कुछ न कुछ करके उन्हें हासिल करने की कोशिश करेंगी, उनको अपनी तरफ मायल करने की कोशिश करेंगी। तो बेहतर शक्ल क्या है कि इन सब से बचने के लिए यूसुफ को जेल में डाल दिया जाए। न यूसुफ यहाँ रहेंगे और न ही इन औरतों का झुकाव उनकी तरफ रहेगा और न ये सूरत हाल रहेगी। ये था मेरे भाइयों बयान, और ये है अल्लाह ताला की भी मसलहत। यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस्मत व पाकदामनी की हिफाजत, और दूसरी तरफ ये औरतें जो कि रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थीं, उन औरतों के ताल्लुक़ से भी उनके शौहरों और उनके घर वालों ने बेहतर यही समझा कि इनको यूसुफ से जितना दूर रखा जाए उतना ही बेहतर है। अब इन औरतों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। कार्रवाई, जो छोटा होता है ना, जो कमजोर होता है, हमेशा कार्रवाई उसी पर की जाती है। ये 3 अहम फायदे हैं, नोट कर लीजिएगा इस तज़किये के दर्स में, आज के इस दर्स में। पहला फायदा याद रखिएगा, पहला फायदा क्या है? किसी के जेल में जाने का मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि वो मुजरिम भी हो भी सकता है मुजरिम,
उसने कोई क्राइम किया हो और उसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा हो, और बहुत से मासूम और बेकसूर लोग भी जेलों में मुख्तलिफ मसलहतों के पेश नज़र डाले जाते हैं, जिसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल में डाला जाता है। तो हर शख्स जिसे जेल हुई हो उससे नफरत मत कीजिए, पहले मालूम कीजिए कि वाकई वो मुजरिम है या नहीं। वाकई मुजरिम है तो ठीक है, बहरहाल उसको उसके जुर्म की सजा मिली, क्रिमिनल है तो ठीक है, उसको उसके क्राइम की सजा मिली। लेकिन बहुत से मासूम भी होते हैं जिनको नाकर्दा गुनाहों की सजा मिलती है। नाकर्दा गुनाहों की सजा उर्दू में ऐसे बोला जाता है, यानी ऐसे गुनाह की सजा जो उन्होंने गुनाह किया ही नहीं, जिसकी एक मिसाल ये यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये पहला फायदा। कभी मेरे भाइयों आपके साथ किसी कंपनी में, आप चूंकि आप में से अक्सरियत जो है लोग मुख्तलिफ जॉब में है, मुझे पता है, या तिजारत में है, कोई भी जो है काम जो है जो उनका है जरिए माश है उसमें लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा कि आपकी अपनी जॉब में भी, अपनी कंपनी में भी बसा औकात आपके साथ बुरा सलूक होता है, हालांकि आपकी कोई गलती नहीं होती। यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर लीजिए, ये तज़किया नफ्स है। दुनिया में ऐसा होता है मेरे भाई, और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने यौमुद्दीन रखा है, जो कि यौमुद्दीन का मालिक है, यानी बदले का दिन, कल क़यामत के दिन जजमेंट फिर से आना है। कि दुनिया में हर एक को इंसाफ नहीं मिलता है, इसीलिए एक ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन हर मजलूम को जालिम से इंसाफ मिल सके। इसीलिए क़यामत का दिन होना बरहक है, ये भी उसकी दलीलों में से एक दलील है। दूसरी बात, दूसरा अहम फायदा, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए, उनको जेल में डाल दिया गया। कभी ऐसा हो सकता है कि अगर किसी मसलहत के पेशे नज़र पूरे समाज और पूरी सोसाइटी के फायदे की एक चीज, और किसी एक शख्स का पर्टिकुलर, किसी एक जो है फर्द का उसमें नुकसान हो रहा, तो कायदा और ज़ाब्ता ये है, रूल ये है, जो इस्लामी रूल भी है, कि जो मसलहत सबके साथ जुड़ी हुई है, जिसमें सबका फायदा है, उसे इख्तियार कर लिया जाएगा। अगरचे कि पर्टिकुलर किसी एक शख्स का उसमें नुकसान हो रहा हो तो उसे बर्दाश्त कर लिया जाएगा, सबका फायदा देखा जाएगा और उसे बर्दाश्त कर लिया जाएगा। ये होता है मामला। तो यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल में जाने से सबका भला है। सबका भला से मेरी मुराद क्या है? ये जितनी भी फैमिलीज थी जिनकी औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम पर मर मिटी थी, ये सारी फैमिलीज, इनके घर का अमन सुकून और इनके घर का जो है माहौल, इन सब को बेहतर रखने के लिए अभी फिलहाल की सूरत हाल ऐसी है कि यूसुफ का जेल में रहना बेहतर है। इसमें नुकसान तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, परेशानी उनको है। हालांकि सही बात तो ये भी थी कि उन्होंने अपने रब से दुआ भी की थी कि इनसे बचने के लिए, इनके मकर फरेब से बचने के लिए वह इस तरह की परेशानी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे। अल्लाह ताला ने ऐसा किया और उन्हें जेल भेज दिया गया। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात इसमें ये है कि एक अच्छा इंसान जहां भी रहता है अपनी अच्छाई से लोगों को वाकिफ कराता है, अपनी अच्छाई की रोशनी हर जगह बिखेरता है वो।
अपनी अच्छाई को लेकर के हर जगह जाता है। ये हमारे लिए नसीहत की बात है। अगर यूसुफ जेल में भी गए हैं तो जेल में भी जा करके इनका मामला ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ ये मशहूर है कि जब कोई जो है शख्स कोई क्रिमिनल जेल में जाता है तो ऐसा नहीं है कि जेल में जा करके उसकी इस्लाह हो जाए और बाद में निकले तो बड़ा जो है शरीफ बन करके निकले, अब उसे एहसास हो कि अब जो है मैं दोबारा ऐसा जो है जुर्म नहीं करूँगा। ऐसा नहीं, यहाँ का हाल ये है कि यहाँ तो लोग कहते ये हैं कि ये जेल खाने इन क्रिमिनल लोगों की यूनिवर्सिटीज है ये, जो वहां से क्राइम में पीएचडी की डिग्री करके निकलते हैं, वहां वो उनकी यूनिवर्सिटी है पढ़ने। यहाँ सूरत हाल ये, जहाँ ये होता है कि एक आदमी जेल से जब उसे रिहा किया जाता है तो ये सोच करके कि जल्द ही फिर जो है मुझे यहाँ आना है, वो क्राइम से तौबा नहीं करता बल्कि और ज्यादा क्रिमिनल बन जाता है, मजीद उसकी ट्रेनिंग लेकर के वापस आता है। लेकिन ये यहाँ की सूरत हाल, क्यों ऐसा है? क्योंकि वहां उनकी तरबियत का कोई नज्म नहीं रखा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल में गए तो जेल में ऐसा नहीं था कि अब वो जेल में है तो चलो मैं जेल में हूँ, अब सरकारी जो है मेहमान हूँ और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे जो है अब मेहमान खाने में डाल दिया गया है, गेस्ट रूम में आ गया हूँ, अब थोड़ा कुछ दिन मैं आराम करता हूँ, आराम से जो है जो खाया पिया आराम करते रहेंगे। ऐसा नहीं। नोट कीजिएगा, ये हमारा क्या है, तज़किये नफ्स की एक क्लास है, नोट कीजिएगा ये पॉइंट। वहां भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि जेल खाना भी, ये कैद खाना भी, ये जेल भी हमारे लिए बेहतरीन दावत का मैदान है। उन्होंने ये सोचा, नेकियां कमाने वाला यहाँ भी नेकियां कमाता है मेरे भाई। अब उन्होंने वहां जेल में मौजूद लोगों की तरबियत करनी शुरू कर दी। एक दाई मेरे भाइयों हर जगह दाई होता है, चाहे वो जिस काम में भी रहेगा वो दाई होता है, वो अच्छाई की तरफ दावत देने वाला होता है, रोशनी बिखेरने वाला होता है, इल्म की रोशनी को फैलाने वाला होता है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ये रोल जेल खाने में भी प्ले किया है, वहां पर उन्होंने अपना ये रोल अदा किया है, वहां खामोश नहीं बैठ गए, जेल में जो कैदी थे उनको दावत देना शुरू कर दी। कितनी बड़ी बात है। कोई चीज जो इंसान के लिए बुरी थी, उस बुराई, उस बुरी जगह में भी खैर का काम, भलाई का काम, उसमें क्या चीज हो सकती है जो हम जिसे यूटिलाइज कर सकते हैं आज के दौर में, जो है आप जिसे कहते हैं कि जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फायदा उठा सकते हैं। आप हमारे यहाँ बहुत सुनते हैं आजकल की जो है आबिदा, यानी जो मुसीबतें होती हैं, उन मुसीबतों में हम कैसे उससे फायदा उठाएं। तो ये चीज यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में आकर के की है, ऐसे ही खामोश नहीं बैठ गए। क्या किया उन्होंने? वहां जा करके वहां दावत व तबलीग का काम शुरू कर दिया, क्योंकि इंसान दाई है, खैर की दावत देने वाला है, भलाई की दावत देने वाला है, तौहीद की दावत देने वाला है, इल्म की किरणें बिखेरने वाला है। जहां भी रहेगा इल्म की शमा जला करके रखेगा, ताकि इल्म की ये शमा लोगों तक रोशनी पहुंचा सके। ये है एक मुसलमान और एक जो है मोमिन और एक अल्लाह के नेक बंदे का रोल इस दुनिया में मेरे भाइयों। वो जहां भी रहता है खैर लोगों के दरमियान आम करता रहता है। तो ये बात थी मेरे भाइयों कि लोगों ने क्या फैसला किया, उन लोगों ने
ये जाहिर होने के बावजूद भी कि यूसुफ मासूम है, उनको कैद खाने में डालने का फैसला किया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। और क्या हुआ फिर उसके बाद, आयत नंबर जो है 36 में, कि वदखल मअहु सिजन फतयानी, और उनके साथ जेल में दो नौजवान और दाखिल हुए। ये तो दाखिल हुए ही, साथ में दो नौजवान और दाखिल, उनको भी दाखिल किया गया। अब ये जो दो नौजवान और दाखिल किए गए, ये असल में वहाँ के शाही दरबार, कह लीजिए कि वहाँ के जो किंगडम है, उस जमाने में किंगडम ही चलती थी, बादशाहत ही चलती थी। जमहूरियत तो अभी इस दौर की जो है पैदावार है। तो ये बादशाहत जो चलती थी उनके यहाँ, उसके लिहाज से होता ये था, बादशाहत में हमेशा ऐसा होता है कि जो भी बादशाह के करीब लोग होते हैं, अगर थोड़ी सी भी कहीं ऐसी गलती हो जाए, तो गलती भी ना हो, लेकिन अगर बादशाह को वो चीज पसंद नहीं आई, तो हमेशा गर्दन पे तलवार लटकती रहती है, कभी भी जेल जाना पड़ सकता है। तो ये जो दो जवान थे, नौजवान थे अभी, जो बादशाह की खिदमत के लिए मामूर थे, बादशाह के दरबार में ये लोग खिदमत अंजाम देते थे, सर्वेंट थे। इसमें से एक शराब पिलाने का जो है कि समझिए उसकी नौकरी थी, शराब पिलाने पर मामूर था। जिसे हम साकी कहते हैं, साकी का मतलब शराब पिलाने वाला। वैसे साकी के माने असल पिलाने के ही होते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल इसका शराब के लिए होता है। तो हुआ ये मेरे भाइयों, और इस सिलसिले में कि ये शख्स जो कि शराब पिलाया करता था, कोई बादशाह किसी चीज पर नाराज हुआ होगा, जेल में ले जाओ डालो, ये तो यही होता है बादशाहों का फरमान। और दूसरा इसमें से जो है रोटी पकाने वाला था, रोटी पकाने वाला यानी यूं समझ लीजिए कि कुक था। कुक तो बहुत सारे रहे होंगे, अलग अलग चीजें बनाने वाले, बादशाहों के पास कुक की तादाद भी बड़ी, लंबी फौज उनकी भी रहती है जो। तो ये नान बाई था, यानी रोटी पकाने वाला था। एक ने जो है, ये जो है वहां पे उसकी खिदमत ये थी, और दूसरे की शराब पिलाने की थी। उसके बाद क्या हुआ, दोनों से नाराज हो करके बादशाह ने इनको भी कहाँ किया, जेल में डाल दिया। अब ये दोनों भी जेल में गए, वदखल मअहु सिजन फतयान। अब जेल में गए, तो जेल में जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में अपनी शराफत और अपनी पाकदामनी और अपनी जो है शरीफाना जिंदगी के लिए, अपने अच्छे अखलाक के लिए जेल में मौजूद सारे कैदियों के में बड़े मुमताज थे। एक अलग ही जो है उनकी पहचान थी, सब इन्हें बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे। ये कोई क्रिमिनल तो थे नहीं, बाइज्जत आदमी थे, इज्जत की निगाह से इनको देखा जाता था। इनको बहुत रिस्पेक्ट दिया गया, जेल के अंदर भी सारे कैदी लोग इन्हें बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे। और एक चीज ये भी थी कि इनको बहुत ज्यादा क्या हासिल था, इल्म भी था। अल्लाह ताला ने जो इनको इल्म दिया था, ख्वाबों की ताबीर का, वो इल्म भी इनके पास था, और ये सब जानते थे। उनकी ये सारी सलाहियतें लोगों के सामने थी, लोग सब जानते थे इनकी ये सलाहियत। इसीलिए कहीं कोई चीज होती, कोई ख्वाब देखता, तो इनके पास आता कि आप इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। बहुत नेक आदमी थे, और नेक लोगों से लोग मशवरे भी लेते हैं, उनसे बातें भी करते हैं, उनसे मसाइल भी पूछते हैं, उनसे मशवरे लेते हैं, उनसे राय मालूम करते हैं, सब चीजें होती हैं। तो जो है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल के अंदर ये मकाम था। तो ये दो नौजवान, इन्होंने ख्वाब देखा, ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। तो पूरा मामला क्या होता है, इंशाअल्लाह
आइंदा दर्स में बात आपके सामने लाई जाएगी। आज का दर्स इसी पर खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।